Today we will learn about preposition. Preposition is a word used before noun or pronoun to tell us about the place, direction, source and method. For example, these are all prepositions: among, between, amongst, besides, on to, over, under, below, at, on, from, to, since or for. These are all prepositions. जब भी हम preposition का use करते हैं then we are talking about the place. कुछ भी है वो कौन से place में है, direction कौन सी है, source क्या है, method क्या है. For example, in among, when we use among in a sentence, तो ये किसी के संदर्भ में बात करता है. Between two or more than two. The teacher distributed sweets among students. Here we are talking about more than two students, then we will use among. The teacher distributed sweets among students. Next example, the brothers quarreled among themselves. Here there are more than two brothers. They are quarreling with each other. The brothers quarrel among themselves. Among हमने use किया, then we use amongst. But is difference between among and amongst? There is a similarity between among and amongst. We use among or amongst before the. For example, among the boys. Also we use amongst the boys. And another difference between among and amongst, जो among है we will use among them, amongst us. This is vowel sound and this is consonant sound. Among का use हम जो consonant sound से पहले use करेंगे और amongst का use vowel sound से before करेंगे. These are the similarities and difference between among and amongst. Next is between. Between means between two persons, between two things. जब हम किसी का relation बताते हैं between two, then we will write between. The match will be played between India and Australia. Next example, there is no enmity between him and her. This is preposition we use between two person or things. जब हम किसी दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं then we will write and between these two. Between का यूज हम दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं जब वहां पे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो between more than two. For example, there is a tournament
between India, Australia and New Zealand। यहाँ पे हमने बिटवीन इंडिया और इनमें रिलेशन दिखाया, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डू beside और beside। example, she sat beside me, वह मेरे बगल में बैठी। A tree beside my house, मेरे घर के बगल में ट्री है, एक ट्री है। बिसाइड्स का यूज हम कहाँ करते हैं कि अतिरिक्त। बिसाइड्स दिस आई हैव अदर पेन्स। बिसाइड्स boys, there were girls too in the party, लड़कों के अलावा लड़कियां भी पार्टी में थी। नेक्स्ट वी विल डू ऑन। We use on to show the contact between two. For example, this is a table and a ball is on the table. We will say this ball is on the table. This marker is on my hand because इन दोनों के बीच में सरफेस और जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कांटेक्ट है। Then we will use, for example, cat is on the table, birds are on the tree। नेक्स्ट और कहाँ हम यूज करते हैं ऑन का, जहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस हो। फॉर एग्जाम्पल, he is on computer, he is working on computer। Next is to show the state of something. For example, this phone is on demand। यहाँ पे ये स्टेट बता रहा है कि डिमांड की जो स्टेट है वो क्या है। यहाँ पे ये पोजीशन बता रहा है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है। यहाँ पे ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर डिवाइस। ही इज ऑन फोन, वो फोन पे बात कर रहा है। ही इज ऑन फोन, कंप्यूटर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम डे और डेट को दिखाने के लिए यूज करते हैं, टू शो डे एंड डेट। He will come on Wednesday। नेक्स्ट डेट दिखाने के लिए, he was born on 25th November 1999। इन सारी चीज़ों में हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे कांटेक्ट हो, कंप्यूटर डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, जो कि दोनों में हमने यूज़ किया। देन हमने यूज़ किया इसको डे और डेट में। देन हमने स्टेट के बारे में बताया कि फ़ोन इज़ ऑन डिमांड, तो उसकी स्टेट क्या है, फ़ोन की जो डिमांड की जो
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑन टू। ऑन और ऑन टू में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट ऑन टू का यूज हम करते हैं जब हमें किसी चीज की मूवमेंट या फिर कोई मोशन दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल कैट jumped onto the table। ओवर, ऑन क्या है, किसी चीज के ऊपर होना, और ओवर भी क्या होता है, किसी चीज के ऊपर होना। दिस इज अ टेबल एंड समथिंग इज ओवर द टेबल। तो ये कांटेक्ट में नहीं है। ऑन में हमने देखा था कि देयर इज कांटेक्ट बिटवीन टू। यहाँ पे बिटवीन हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, बट दोनों में कांटेक्ट नहीं होगा। लेट्स सी। अम्ब्रेला इज ओवर माय हेड। दोनों में कांटेक्ट नहीं है, बट ये इसके ऊपर है, हम ऊपर की ही बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवर इज जब हम किसी चीज को कवर करने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई पुट अ ब्लैंकेट over my body। यहाँ पे हमने किसी चीज को कवर किया। जब हम कवर करने की बात करते हैं, then we will write over, I put a blanket over my body, I apply cream over my face। तो हम किसी अपने ऊपर लगा रहे हैं, तो हम इस चीज को कवर करने के लिए हम बात करते हैं कि कवर कर रहे हैं, अपने फेस को कवर कर रहे हैं। देयर इज अ फैन ओवर हेड। यहाँ पे हम फैन की बात कर रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है दोनों के बीच में। हम ऐसे कर सकते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये कांटेक्ट में नहीं है, तो हम ओवर का यूज करते हैं। और अंडर का हम यूज कहाँ करते हैं, दिस इज क्वाइट ऑपोजिट ऑफ ओवर। यहाँ पे हम अंडर की बात करेंगे, बट ये दोनों कांटेक्ट में नहीं होगा, या फिर हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। दोनों में कांटेक्ट नहीं है, ये अंडर है, ये ओवर है। देयर इज अ कैट under the table। There is Titanic ship under water। Next we will discuss about, next we have above and below। These are both opposites like over और under। above क्या है, ये भी हम ऊपर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हाई लेवल की हम बात करेंगे, इसमें हाई लेवल, और इसमें भी कांटेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हिज हाउस is above 2000 meter above sea level। सी और हाउस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ये हम हाई लेवल की बात कर रहे हैं, तो सी लेवल से हाउस जो है वो 2000 मीटर अबव है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं अबव का टू शो द टेम्परेचर। The temperature
These are example of above. अब हम जब बिलो की बात करते हैं भी हम क्या करते हैं, बहुत बिलो की बात कर रहे हैं, गहराई की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज के नीचे होने की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग. This is your painting and this is your box. There is a big box below the painting. Second one is read the points written next. From, we use from to show the origin of something. The bus arrives from Mumbai to गोवा. बस है, उसका अराइवल, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा. तो यहाँ से फ्रॉम का यूज हमने किया, ये इसका ओरिजिन है. नेक्स्ट, द लेटर इज फ्रॉम द प्रिंसिपल. यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, किसकी तरफ से, किसके द्वारा. द लेटर इज फ्रॉम द प्रिंसिपल. नेक्स्ट, हम फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं? टू शो द कॉज ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक. She is suffering from. Next, 2. When we are talking about the destination, he is going to Delhi. Send him to school. Here we have destination. We have to reach. He has to reach Delhi and send him to school. Here is the destination. Here we have to go. Here we use to as a preposition. Next, जो हमारा to की जगह हम यूज करते हैं towards. Towards होता है किसी चीज की तरफ. टूवर्ड्स का यूज हम देखेंगे. ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल. यहाँ पे डिफरेंस है, स्कूल उसका डेस्टिनेशन नहीं है, बट ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल. स्कूल के आसपास जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है, बट दिस इज नॉट हिज प्रॉपर डेस्टिनेशन. उसका डेस्टिनेशन ये नहीं है, उसका डेस्टिनेशन जो है वो कुछ और भी हो सकता है. दिस इज since or for. We use this since or for in perfect tense to show time. To show time. I have already told you about the use of since or for. For का use हम करते हैं indefinite time. For example, 2 days, 40 minutes, 10 years. These are indefinite time. Next, जो since का हम यूज करते हैं before, जो हमारा definite time अगर हमारे पास होता है, definite time जो कि हमारा हो गया
like Monday, January 14th, July 1948. These are definite time. 2 o'clock. And last we will do at or in. At और in का use हम कहाँ करते हैं? We use at where we have the time of our जो हमारा घड़ी का टाइम होता है, like hour, minutes, seconds, ये सारे अगर हमारे पास होंगे then we will use at. अदरवाइज जो हमारे पास जो कैलेंडर में होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, लाइक दिस, तो हमने इन चीज़ों के लिए यूज़ करना है इन, लाइक ईयर्स, मंथ्स, डेज, डेट्स, लाइक May 2015 I reached Delhi at 2 o'clock. जब हम वॉच की बात कर रहे हैं then we will write at 2 o'clock. He was born in 2015. At का यूज हम करते हैं एग्जैक्ट टाइम के साथ. These are the examples of